Hello students, welcome to your lecture number 30 and today's topic is sentence improvement. So हमने previous week में भी इस topic के ऊपर questions किए थे. आज भी हम इसके ऊपर questions करेंगे because it is high time that you start practicing questions. Most of the conceptual topics are over. मैं already आपको समझा ही चुकी हूँ कैसे करना है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और topics जो भी होंगे वो भी मैं आपको समझाती रहूंगी, right? तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इज वन सच टॉपिक जिस जो बहुत स्कोरिंग है and you can score really good marks in this topic if you have previous knowledge of all the concepts we have done so far जैसे कि आपके tenses हो गए, then आपके adverbs, adjectives and your subject verb agreement. ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के. एंड द गुड पार्ट इज यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया होगा कि कहाँ पे एरर है. So you just have to nullify the error. You already know कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, which makes it more easier. And the best way to do is it you use the options. सारे ऑप्शंस को एक एक बार फिट करके देखो उस जगह पे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने को बोला गया है. And I am 100% sure you'll be able to find the answer, right? So today's topic will be questions. Like yesterday हम आज भी questions practice करेंगे so that आपको इस concept का और इस टॉपिक का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. और आई हैव ब्रॉट PYQs फॉर यू सो दैट आपको पता लगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओ, राइट? सो मार्क योर सेल्फ अकॉर्डिंगली एंड देन लेट मी नो द मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू बाय सीइंग कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, राइट? And do share the video with as many people as you want. You friends can have a healthy competition. आपस में you people can have a healthy competition to see कि किसके marks ज्यादा आ रहे हैं किसके कम. And this will only help you to improvise, right? So let's start. So your first question is here on the screen. He could not look anything in the dark room. Now this is the place where you have to make an improvement. You've been given four options. You have to choose one out of these four options. तो अभी आपको क्या करना है? You simply have to put each option into the place where improvement is required and then see whether it is of any use or not, right? तो जितने भी ऑप्शन हैं, लुक एट, सी थ्रू या फिर नो इम्प्रूवमेंट, सबको यहाँ पे फिट करके देखो और फिर ढूंढो कि कहाँ पे आंसर मिलेगा आपको. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. सो आई एम गिविंग यू 30 seconds. यू शुड फाइंड आउट द आंसर. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? So the answer for the first question will be look at. He could not look at anything in the dark room. उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. अकेला look नहीं आएगा. He could not look anything in the dark room. ये पढ़ के ही हमें पता लग रहा है that it is not really making any sense. He could not see anything in the dark room. उससे better है look at. He could not look at anything. See से better है ये. See through तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. See through होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज करते हैं. ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज सी थ्रू, है ना? नो इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. सो द आंसर इज लुक एट. नेक्स्ट, ही वॉज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग. अब इसमें ढूंढो क्या इंप्रूवमेंट आएगी, या फिर अगर नहीं आ रही कोई इंप्रूवमेंट तो वो भी देखो क्या आएगा यहाँ पे. ट्राई ऑल द ऑप्शंस. ओके, ऐसा नहीं करना कि हम गिव अप कर देंगे. ट्राई ऑल द ऑप्शंस. सबको बीच में फिट करके देखो एक एक बार. So the answer will be got fined. He got fined for careless driving. Was fined नहीं, according to the rules of your tenses. यहाँ पे tenses apply हो रहे हैं. It will be got fined. Fined अकेला तो बिल्कुल भी नहीं. Was to be fined, no. He has already been fined. So the answer is got fined. Next, we look forward to hear from you. ये भी आपने सुना होगा कई बार, है ना? सुनने में आपको आया होगा ये. तो hearing, have heard, listen क्या आएगा? Which of the options is applicable? ध्यान से पढ़ो एंड देन फाइंड आउट व्हाट शुड बी द आंसर. ऐसे रैंडमली क्लिक मत कर दिया करो. आराम से उसके ऊपर टाइम लगाओ. देखो कि क्या आंसर आना चाहिए. ध्यान से पढ़ो इसको.
So the answer will be we look forward to hearing from you. Have heard, listen तो बिल्कुल भी नहीं. This is a common way of saying things. We look forward to hearing from you. हम हमेशा ऐसा ही बोलते हैं. This is the rule. So it will be hearing, not hear. Okay? We look forward to hearing from you. Next. When the examinations were over, Anil and me went to our native town. Me and Anil, Anil and I and so no improvement. I and Anil. तो क्या आएगा? दिस इज वेरी कॉमन. बहुत बार आपको ये क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा. मैक्सिमम पीवाईक्यूज आपको ऐसे टाइप के ही मिलेंगे. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. तो अगर हम ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर इसको सही नहीं करेंगे, देन दैट इज आवर मिस्टेक, राइट? बिकॉज कुछ चीजें ऐसी है जो हमें मालूम ही है कि आएंगी ही आएंगी, तो फिर उनमें हमें डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, राइट? तो यहाँ क्या आएगा? When the examinations were over, Anil and I, Anil and me नहीं, यहाँ I आएगा. Went to our native town. बहुत कॉमन रूल है, आपने कई बार सुना होगा. नेक्स्ट. विल यू काइंडली ओपन द नॉट, अनटाई, ब्रेक, लूज, नो इम्प्रूवमेंट. क्या आएगा यहाँ पे? बेसिक नॉलेज है. देखो ये इम्प्रूवमेंट है. ओके, दिस इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, दिस इज नॉट सेंटेंस एरर. तो जरूरी नहीं कि कोई चीज गलत ही हो, है ना? गलत ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ चीजों को हम और बेहतर भी कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? और बेटर बनाना. तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको हम बेटर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ओपन है तो हम अनटाई बोल सकते हैं. विल यू काइंडली अनटाई द नॉट. ब्रेक या लूज नहीं. ओपन भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनटाई इज बेटर. एंड यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें बेटर ऑप्शन चूज करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट. रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री, the government laid aside a large sum on it during the last plan period. अब देखो फिर से, दिस इज अबाउट इम्प्रूवमेंट, दिस इज नॉट अबाउट एरर. तो फाइंड द बेटर आंसर. डोंट लुक फॉर द आंसर विच इज गुड, लुक फॉर द आंसर विच इज बेटर. फाइंड आउट द बेटर आंसर. क्या आएगा यहाँ पे? सारे ऑप्शंस को फिल करके देखो, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा. द आंसर इज सेट असाइड. कुछ पैसे उसने अलग से रख लिए. सेट असाइड. लेड असाइड भी गलत नहीं है, बट देन अगेन दिस इज बेटर एंड वी हैव टू गो फॉर द बेटर ऑप्शन. वी डोंट हैव टू गो फॉर द गुड आंसर, वी विल गो फॉर द बेटर आंसर. आगे देखो. अदर कंट्रीज हैव इरेडिकेटेड दिस डिजीज 10 years ago. क्या आएगा यहाँ पे? टेंसेस के रूल लगाओ, आंसर मिल जाएगा. द आंसर इज इरेडिकेटेड. हैव नहीं आएगा. अदर कंट्रीज इरेडिकेटेड दिस डिजीज 10 years ago. ऑलरेडी कर चुके हैं इरेडिकेट, राइट? तो हैव की यहाँ जरूरत नहीं है परफेक्ट बताने की, हमें सिंपल पास्ट से भी चल जाएगा. हैड इरेडिकेटेड इज रॉन्ग. डिड इरेडिकेटेड तो कुछ सेंसिबल ही नहीं. नेक्स्ट. वी वर नॉट द वाइजर फॉर ऑल दिस एफर्ट टू एक्सप्लेन द केस टू अस. नन, नाइदर, नेवरदलेस. काफी आसान है पर दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये क्वेश्चन. करके देखो इसको सॉल्व एक बार. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ऐसे क्वेश्चंस देके घबराना नहीं है, उनको अटेम्प्ट करना है. ओके, अटेम्प्ट करके देखो इसको. इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट. क्या आंसर आएगा? सोचो, आराम से सोचो, क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी नेवरदलेस. वी वर नेवरदलेस द वाइजर फॉर ऑल दिस एफर्ट टू एक्सप्लेन द केस टू अस. नॉट नहीं, नाइदर के साथ तो नॉर आना चाहिए. नॉर यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ये तो क्या, नन भी नहीं आएगा. इट इज नेवरदलेस. नेक्स्ट. If I stood alone in defense of truth and the whole world is banded against me and against truth, I would fight them all. क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ आंसर? What will be the answer? आई के
के साथ मैंने आपको बोला था वर आएगा, तो यहाँ आएगा वर बैंडेड, एंड द होल वर्ल्ड वर बैंडेड अगेंस्ट मी। विल बी बैंडेड नहीं, वो तो फ्यूचर हो जाता, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट की बात कर रहा है, बैंडेड अकेला नहीं आएगा, इट विल बी वर बैंडेड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पेन। अब देखो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ये फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन है। सारे ऑप्शंस पुट करके देखो, सारे ऑप्शंस पुट करके देखो क्या आएगा आंसर। विच ऑफ दीज विल बिकम द आंसर? द आंसर विल बी टच, ही डिड नॉट टच अपॉन दैट पॉइंट, उसने उस पॉइंट की बात ही नहीं की। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच अपॉन दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये टच ऑन टच ऑफ नहीं आएंगे, इट विल बी टच अपॉन, उसने उस पॉइंट के बारे में कोई बात ही नहीं की, उसको छेड़ा ही नहीं पॉइंट को, जैसे हम बोलते। नेक्स्ट, he has not and can never be in the good books of his employer because he lacks honesty। क्या आएगा यहाँ पे? अब देखो, दो चीजें हैं, है ना, तो दोनों के रूल्स को देखना है आपने, सिर्फ एक के रूल को देख के काम नहीं चलेगा, दोनों रूल्स को अप्लाई करो, मतलब दोनों टेंसेस के रूल्स को देखो सेंटेंस के हिसाब से। क्या आंसर आएगा? आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। बस बड़े क्वेश्चंस को देख के आप डर जाते हो कि पता नहीं क्या पूछ लिया, कुछ नहीं, सब बड़े क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं हमेशा, उनको छोड़ के नहीं आना कभी भी। द आंसर इज ऑप्शन सी, ही हैज नॉट बीन, वो कभी भी नहीं रहा ना गुड बुक्स में, ही हैज नॉट बीन, एंड कैन नेवर बी, कैन नेवर बी बिल्कुल ठीक था, ही हैज नॉट बीन अभी तक भी नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेगा, हिंदी करके देखो। नेक्स्ट, दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज। क्या आएगा यहाँ पे? एडमिट्स ऑफ, एडमिट्स टू, एडमिट्स फ्रॉम, एडमिट्स, क्या आएगा यहाँ पे? सोच के आंसर करो, जल्दबाजी में हमेशा गलत आंसर चूज करते हैं, इसलिए टाइम लो अपना, आराम से आंसर चूज करो। यहाँ आएगा दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज, फ्रॉम टू कुछ ऑफ किसी भी प्रपोजिशन की यहाँ जरूरत नहीं है, इट इज ओनली एडमिट्स, दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू टुडेज लेक्चर। आपकी आज की जो डेली वोकैबुलरी है थी नहीं, इसलिए मैं उसको कल वाले लेक्चर में लेके आऊंगी। और आपके जितने भी आज मार्क्स आए हैं वो आप प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताना, सो दैट आई विल फिगर आउट कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इंग्लिश को ठीक करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, मैं आपको कोई और गोली नहीं दे सकती, यही गोली है, प्रैक्टिस करो इसको, राइट? एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और क्लास की पीडीएफ 99 रुपीज में आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी, आप इसको कभी भी बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। थैंक यू।